پاکستان کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈ ان پاکستان کو میڈ ان سی پیک میں تبدیل کرنا چاہیے۔ جب مارکیٹ دوبارہ کھلی تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور طلب میں اضافے کا امکان ہے۔ بایو ماس بجلی کی پیداوار ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے ہم خاص طور پر امید ہیں۔ چین کو اعلیٰ معیار کے آم، کھجور اور آلو فروخت کر سکتا ہے۔ منسلک سرحد پار لباس کی انڈسٹریل چین تشکیل دیں تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر عالمی مارکیٹ کو کھول سکیں۔ معلومات کی درست ترسیل اور وصول ٹریفک مینجمنٹ کے تصور کو ٹریفک گائیڈنس کے تصور میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ تکنیکی مصنوعات کی ترقی کے طریقہ کار کے مطابق بغیر ڈرائیور گاڑیوں کا زیادہ امکان 2030 سے 2050 کے لگ بھگ ہے۔ شہری آمد و رفت میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر ساجد خورشید جو کہ ہیڈ آف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کنیڈی انٹرنیشنل اسکول بیجنگ اور چنگخوا یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں، اور جناب سمیر صدیقی صاحب جو کہ ABB کمپنی میں ایشیا پیسیفک IT امور کے انسیڈنٹ مینیجر ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا ریسپانس۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے جولائی 2020 سے کسٹم ریلیف
عہد میں داخل ہوگی۔ پاکستانی بہت سارے شعبوں میں جس میں زراعت ہے، سرجیکل آلات ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں میڈ ان پاکستان کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کو، مصنوعات کو تمام دنیا میں رسائی دی جائے اور پاکستانی نام اس میں شامل ہو۔ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اس سلسلے میں جتنے بھی اقدامات کر رہی ہے وہ قابل قدر ہیں، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ ہے، لیکن پوری مشینری کی اور موسٹلی جتنے بھی را مٹیریل کی جو یہ چیزیں ہیں آئسز وغیرہ یہ زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہیں چائنا سے یا دوسرے ممالک سے۔ تو اگر یہ امپورٹ ہوں گی اور اس کو امپورٹ ایزی ہوگی تو ظاہری بات ہے پروڈکشن میں سپیڈ بھی آئے گی، پروڈکشن اچھی بھی ہوگی اور اس سے روزگار کے مواقع بھی بنیں گے زیادہ سے زیادہ، اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی زیادہ اچھے پیمانے پہ ہو سکے گی اور اس کی کوالٹی بھی آف کورس امپروو ہوگی۔ حال ہی میں میڈ ان پاکستان پر پاکستانی عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ جیسے گاڑیوں کے پارٹس ہیں، پوری دنیا سے ہم لوگ پاکستان میں جاپان سے، چائنا سے، پوری دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ان پارٹس کو پاکستانی پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکستانی پروڈکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی عوام جو ہے اپنی پروڈکٹس کو یوز کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر اس ٹیرف کی وجہ سے اگر ان کی قیمتیں ڈاؤن ہوں گی اور عوام کی رسائی میں آسانی ہوگی، ان کو خریدنے میں، ان کو مارکیٹائز کرنے میں، ان کو سیل کرنے میں، اور تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ہے اور عوام کو سہولت، اس کی کافی سہولت ملے گی کہ اگر کوئی امپورٹڈ چیز وہ جو مثال کے طور پہ وہ 100 ین کی خرید رہے ہیں تو اپنی میڈ ان پاکستان وہ 30 یا 40 روپیز کی خرید سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں چائنا اکنامک نیٹ کے ایک اقدام پر رپورٹ کی تھی جس کا مقصد وبا کے بعد چینی اور پاکستانی کمپنیوں کی ترقی کے اہداف کو پورا کیا جانا تھا۔ اس سال ان کمپنیوں کے اہداف کیا ہیں اور کون سے نئے مواقع موجود ہیں؟ آئیے ہم پاک چائنا ٹریڈ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عالمی سیاحت کی صنعت کو کم از کم 22 ارب امریکی ہم نے گزشتہ سال پاکستان میں 200 سے زائد زرعی مشینیں فروخت کی اور اس سال ہم دگنی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے مشینوں کو پاکستان میں کاشتکاری کے مقامی ماڈل کے مطابق تبدیل کیا۔ مشینوں کے استعمال سے پاکستان میں فی ایکڑ آلو کی پیداوار تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔ اگلے مرحلے کے لیے ہم بیجوں، کیڑے مار ادویات، کھادوں اور دیگر شعبوں میں مدد فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
गुज़श्ता साल फरोख्त तकरीबन 8 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। असल में हमने 2019 के मुकाबले में कारोबार में 1.5 गुना इजाफा करने का इरादा किया था, लेकिन कोविड-19 के फैलने के बाद मार्केट का दोबारा जायजा लेना पड़ा। इस दौरान हमारी तकनीकी टीम नए अज्जा तैयार कर रही है। आलमी कारोबार में आम तासुल ने मुस्तकबिल की इम्कानी तलब पैदा करती है। जब मार्केट दोबारा खुली तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और तलब में इजाफे का इम्कान है, जिससे बहुत बड़े मौके मिल सकते हैं। इस वबा के बाद चीन और पाकिस्तान के माबैन किस किस्म का ताउन किया जा सकता है? बायोमास बिजली की पैदावार एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से हम खास तौर पर पुरउम्मीद हैं। मसलन दोहरी फ्यूल बायोमास बिजली पैदा करने के लिए शुगर रिफाइनरी के बैग का इस्तेमाल, दूसरे तेल या ईंधन के साथ मिलावट वगैरह। इसके साथ साथ कूड़े से बिजली पैदा करने जैसे मंसूबे भी हैं। हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान में शिराकतदार मिलेंगे। मुल्तान चीन को आला मयार के आम, खजूर और आलू फरोख्त कर सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल, सूट और फैब्रिक जो पहले ही बरामद हो चुका है और निस्बतन कम कीमत पर बड़ी मिकदार में मुर्गी के पंजों की प्रोसेसिंग कर सकता है। हमें उम्मीद है कि रवां साल वबा के बाद फ्रूट के मुंजमद टुकड़ों और मैंगो प्रोसेसिंग की पाकिस्तानी फैक्ट्रियां तलाश कर लेंगे। पाकिस्तानी चेरी और आम हमारे मुस्तकबिल के ताउन की कुंजी हैं, ताहम शजरकारी के इख्तिताम पर कुछ बेहतरी की जरूरत हो सकती है, जैसे मसनूआत को बेहतर दिखाई देने के लिए कुछ कीमियाई माइक्रो एलिमेंट खाद शामिल करना। हमें उम्मीद है कि हम अपनी प्रिजर्वेशन और इंडस्ट्रियल चेन टेक्नोलॉजी उनकी आला मयार की ज़राई मसनूआत के साथ यकजा करेंगे। गुज़श्ता साल सिर्फ 24.13 टन आम पाकिस्तान से चीन भेजे गए थे, जो बुनियादी तौर पर हवाई नक्लो हमल के जरिए दरामद किए गए थे, लेकिन हुजम बहुत महदूद था और कीमत बहुत ज्यादा थी। इस साल हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए खुंजराब पास जाने का इरादा रखते हैं और जमीनी आमदोरफ्त के जरिए दरामद के लिए सैकड़ों फ्रीजर खरीदे गए हैं। अगर पाकिस्तान कस्टम ताउन करता है और खुंजराब पास के जरिए मुस्तकबिल में सरहदी तिजारत हो, जैसा कि चीन और वियतनाम के माबैन और चीन और लाओस के माबैन होती है, तो पाकिस्तानी फलों की चीन बरामद में बहुत इजाफा होगा। दुनिया की 500 ताकतवर कंपनियों में से एक COFCO की कायम करदा फूड शॉपिंग वेबसाइट wumai.com इकनॉमिक डेली के चाइना इकनॉमिक नेट के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि वबा से मुतासर होने की वजह से बड़े पैमाने पर खपत ऑनलाइन मुंतकिल हो गई है, जिसने फूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नई तरक्की दी है। मुस्तकबिल में wumai.com पाकिस्तान और दीगर बैरून मुल्क जराए से आने वाली अच्छी मसनूआत को मुस्तरद नहीं करेगा। कर पा रहे तो ऑनलाइन बिजनेसेस और सर्विस इंडस्ट्री स्पेशली जिसमें डिलीवरी के बिजनेस हैं और इस तरह के बिजनेस, इनको काफ़ी रुझान मिला है। मेडिकल का शोबा बहुत ज़्यादा है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अब हम इस वक्त ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हुए हैं कि हम वेंटिलेटर्स भी हम खुद अपने बना रहे हैं। इसी तरह टेलीकॉम का जो शोबा है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इसलिए कि लोग घर पे महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास टेलीविज़न, इंटरनेट के अलावा कोई और सोर्स नहीं रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, तो इंटरनेट की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं CPAC मेड। वबा के दौरान खपत की आदात में ठीक ठाक तब्दीली थी और 6/18 शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान ये बढ़ गई, जो इस वबा के बाद पहला चीनी ई कॉमर्स खपत का सीजन था। ई कॉमर्स के बड़े प्लेटफॉर्म एक के बाद एक अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। टी माल के मजमूई ऑर्डर की रकम 698.2 बिलियन युआन थी, जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। JD.com के मजमूई ऑर्डर गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 33.6% इजाफे के साथ 269.2 बिलियन युआन तक पहुँच गए थे। पिंगटोटो के आर्डर की तादाद में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 119% इजाफा हुआ है। इनमें मलबूसात कैटेगरी में सिर्फ 16 जून को 1 घंटे से भी कम वक्त में 28 ब्रांड्स की फरोख्त गुज़श्ता साल के पूरे दिन में होने वाली सेल से तजावज़ कर गई। ऑनलाइन फरोख्त मलबूसात के ब्रांड्स की तरक्की का एक अहम चैनल बन रही है, जो वबा के दौरान मसनूआत के ज़ख़ीरे और मौसम ख़ज़ा और मौसम सरमा में नए ब्रांड्स की आमद के हवाले से मुश्किलात का शिकार थी। मैं आमतौर पर दाओइन को ब्राउज करती हूँ और इस पर तरह तरह की सिफारिशात आती हैं। इंतखाब की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है।
मुझे आगे पीछे भी नहीं चलना पड़ता। ये बहुत आसान और फौरी महसूस होता है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई तो आप VR या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करके घर पर ट्राई कर सकते हैं और अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। वबा की वजह से लिबास की ऑन साइट फिटिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि क्लाउड डिस्प्ले के तरीकों जैसे लाइव स्ट्रीमिंग फरोख्त और नकाली मुमाशरत को आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपना लिया। मुस्तकबिल में खालिस ऑनलाइन और ऑफलाइन के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे कुछ ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ ऑफलाइन तजर्बाती स्टोर्स खोलना शुरू कर देते हैं और कुछ ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी मिनी ऐप्स और ऑनलाइन तशहीर के लिए बराह रास्त नशरियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दोनों का इंतजाम मुस्तहकम और मजबूत होता जा रहा है, लिहाजा एक कारखानादार के नुक्ते नज़र से ये मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए मुख्तलिफ लोगों का अहाता कर सकता है। लिहाजा दुरुस्त तफरीक के लिए मुख्तलिफ चैनल बनाएं, मसनूआत में फ़र्क करें। अब एक बड़ी मिकदार में कम कीमत और कम लागत पैदावार ज्यादा से ज्यादा नाकाबिले अमल हो रही है। मजदूरी की लागत वगैरह की वजह से ऑर्डर का नफा बहुत कम होता है, चुनांचे इसने तब्दीली का सोचा, यानी इसने इनफरादियत को समझा। आजकल नौजवानों के सर्फ का रुझान का मतलब ये नहीं कि वो इसे 10 साल तक पहनेंगे। मैं एक सीजन या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक पहन सकती हूँ। ये अपडेट होता रहता है, मुसलसल मेरी शख्सियत की नुमाइश होती रहती है, लिहाजा खपत भी इस रुझान को पूरा करती है। ये एक रुझान है, लिहाजा इसे इंटरनेट पर तरक्की के लिए एक बेहतरीन जगह मिल गई है। जहाँ तक लिबास का ताल्लुक है, हम देख सकते हैं कि इसकी बुनियादी खुसूसियात जैसे गर्म रखना वगैरह ये अब अहम नहीं रहा। इसके बरअक्स हम लिबास, ब्रांड, अंदाज, रंग और इसी तरह के दूसरे तरीकों से जिंदगी के बारे में अपने रवैये का इजहार करना चाहते हैं। लिहाजा चाहे हम इसे अलामत की खपत कहें या रूह की खपत, इसके लिए हम मैन्युफैक्चरर्स को इस तरह की तब्दीली पर गहरी तवज्जो देने की जरूरत है। मुस्तकबिल में मलबूसात की सनत में मुसाबकती फायदा हासिल करने के लिए चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों में क्या तावन किया जा सकता है? पाकिस्तान के अपने फवाइद हैं। अगर इसका ज्यादातर खाम माल इस्तेमाल किया जाए तो चीन बुनाई, कताई, टेक्सटाइल और कपड़े बनाने में ज्यादा काबिल हो सकता है। दोनों ममालिक के माबैन ताआवुन की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अब तमाम पहलुओं से अखराजात में इजाफे की वजह से चीन एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है जहां हमारी पूरी इंडस्ट्रियल चेन की सलाहियत बढ़ती जा रही है। हम अपनी मसनूआत, अपने डिजाइन, अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग पाकिस्तान में ला सकते हैं और मजीद करीब से तश्कील दे सकते हैं। मुंसलिक सरहद पार लिबास की इंडस्ट्रियल चेन तश्कील दें ताकि हम एक साथ मिलकर आलमी मार्केट को खोल सकें। मलबूसात की सनत के लिए बरामदी मार्केट अब भी आला मयार और कम कीमत की खसूसियत रखती है। इस तरह की मसनूआत तरक्की पजीर ममालिक में सार्फिन की मार्केट के लिए खास तौर पर मौजू हैं, क्योंकि मसनूआत की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मयार बहुत अच्छा है। तरक्की पजीर ममालिक इन सार्फिन के लिए जो मयारी और कम कीमत पर अमल पैरा हैं, चीनी साख्ता लिबास इनका इत्मीनान बख्श इंतखाब होना चाहिए। इसलिए मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करता हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ऑनलाइन में आप अगर नहीं पसंद आया डिज़ाइन आपको या साइजेस ठीक नहीं है तो आप बड़े इजीली आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, दोबारा आप उसको चेंज कर सकते हैं और बड़ा आसान है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि आप शॉपिंग भी कर लेते हैं और उसके साथ साथ आप अपना बिजनेस या काम भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं इजीली। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ड्राइव करें और रश को फेस करें और फिर मार्केट जाएं और फिर वहाँ पे आप कोविड का रिस्क भी लें और फिर वापस आएँ में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 87% जो आबादी है वो हमारी जो है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस ज़रूर है जिसके ऊपर वो ऐसी ऐप्स डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और उनके ऑनलाइन अकाउंट्स भी हैं। पाकिस्तानी यंग जनरेशन जो है इंटरनेट ऑलमोस्ट हर एक के पास एक्सेस में है। इवन जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे भी देहात पर में यूज़ होता है। तो मेरा ख्याल से ये एक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑनलाइन शॉपिंग की, अगर उसको एक अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए और उसको वहाँ पे आवाम को थोड़ा सा नौ-हो दी जाए। नाजरीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। इस वक्त चीन दुनिया में गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है।
और इंटरनेट व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग से इंटेलिजेंट कनेक्शन की तरफ बढ़ रही है। इंटेलिजेंट और इंटरनेट से मुंसलिक गाड़ियों की तैयारी को फरोग देना जामे कौमी हिकमत अमली का भी हिस्सा बना दिया गया है। वुशी म्यूनिसिपल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर जुबाओ ने हाल ही में इकोनॉमिक डेली, चाइना इकोनॉमिक नेट के जेर एहतमाम थाईखो यूशियांग के वुशी में मुनक्किदा चौथे ऑनलाइन फोरम में इंटरव्यू के दौरान इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स और बगैर ड्राइवर टेक्नोलॉजी की तरक्की की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। वुशी 的发展角度来说，我们是从17年开始。 वुशी 2017 से गाड़ियों को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करने के तरीके तलाश कर रहा है। चीन में वाहिद सेंसर नेटवर्क इनोवेशन डेमोन्स्ट्रेशन एरिया की हैसियत से 2000 से जायद इंटरनेट अशिया के कारोबारी इदारों और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के तहत ट्रैफिक मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नुमाइंदे बहुत से साइंसी तहकीकी इदारों ने सनती तरक्की और तकनीकी जिद्दत के लिए तकनीकी मदद और मजबूत जमानत फराहम की है। दुनिया के मारूफ स्मार्ट शहर की हैसियत से वुशी का नकलो हमल का बुनियादी ढांचा निस्बतन मुकम्मल है और ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम आला सतह का है। ये तमाम गाड़ियों को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल करने के मंसूबों के नफाज के लिए सहूलियात मुहैया करते हैं। इस वक्त वुशी में इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्री इकोलॉजी और सनती चीन में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जुबाओ चेन ने कहा कि वुशी के 1200 मुरब्बा किलोमीटर शहरी इलाके पर मुहित इंटरनेट इंटेलिजेंट पर मबनी सड़क की तब्दीली 2022 तक पूरे नेटवर्क कवरेज के जरिए मुकम्मल हो जाएगी और शहर में गाड़ियों के इंटरनेट की मुतवक्कर रसाई की शरह 50% से ज्यादा होगी। ये सब अनासर बगैर ड्राइवर टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन में तेजी लाने की एक मजबूत जमानत फराहम करते हैं। 要实现真正的无人驾驶啊，还是需要 ड्राइवर के बगैर ड्राइविंग को सही मानों में नाफिज करने के लिए गाड़ियों और बुनियादी ढांचे का ताउन सबसे पहले आता है। गाड़ियों और कारों के इंटरनेट के ज़हीन इंजमाम का फरोग रोजमर्रा जिंदगी में ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ियों के मुतारिफ होने को तेज कर सकता है। इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स इंडस्ट्री के नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये एक वसी समंदर है जो मुतनव्वे टेक्नोलॉजीज की एक सीरीज की तरक्की को आगे बढ़ाएगा। इससे कबल वुशी व्हीकल्स इंटरनेट की तरक्की बुनियादी तौर पर जांच और तौसीक पर मबनी थी। इस साल से ये दूसरे मरहले में दाखिल होगा, यानी पूरे सनती माहौल को मुस्तकिल तौर पर बेहतर बनाने के लिए राउंड कमर्शियल ऑपरेशन सर्च को मरकज बनाया जाएगा। बगैर ड्राइवर गाड़ी चलाने वाली टेक्नोलॉजी के नफाज से पहले शहरी ट्रांसपोर्ट पर उसके असरात पर गौर किया जाना चाहिए। पब्लिक सिक्योरिटी के वजारत ट्रैफिक मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर गुआंगचन ने ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान इंटेलिजेंट व्हीकल्स के असरात का तज्जिया किया। 信息的精准投递和获取，促进了我们交管 मालूमात की दुरुस्त तरसील और हुसूल ट्रैफिक मैनेजमेंट के तसव्वुर को ट्रैफिक गाइडेंस के तसव्वुर में बदलने में मदद देता है। इससे पहले नाकाबिले रसाई ट्रैफिक कंट्रोल मालूमात जैसे ट्रैफिक गाइडेंस सर्विस इंफॉर्मेशन की सूरत में आवाम तक पहुंचाई जाएं ताकि ट्रैफिक कंट्रोल से मुताल्लिक मालूमात की असल और मुतहर्रिक नौइयत को बेहतर बनाया जाए और साथ साथ शहरी नकलो हमल के तजर्बे को बेहतर बनाया जाए। ट्रैफिक के मसाइल को हल करने का वाहिद रास्ता मैनेजमेंट और कंट्रोल से लेकर गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताउन से ट्रैफिक गाइडेंस के तसव्वुर तक है। इससे सड़कों के महदूद वसाइल और लोगों की आमदोरफ्त की तलब और शहरी ट्रैफिक की भीड़ के माबैन तजाद को दूर किया जाता है। मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज के निफाज और पॉलिसियों की मुस्तकिल रहनुमाई के साथ सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और भी करीब हो गई है और नुमाइशी इलाकों में बहुत सी सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियां दस्तयाब हो सकती हैं। 无人驾驶出租车应该是无人驾驶里边，对智能车里边的话， ड्राइवर के बगैर ड्राइविंग के शोबे में बगैर ड्राइवर टैक्सी माउंट एवरेस्ट होनी चाहिए। अगर बगैर ड्राइवर टैक्सियों की तकनीकी रुकावटों को दूर कर दिया जाए तो मुझे यकीन है कि बगैर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट और बगैर ड्राइवर टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा सकता है। तकनीकी मसनूआत की तरक्की के तरीक़ाकार के मुताबिक बगैर ड्राइवर गाड़ियों का
زیادہ امکان 2030 سے 2050 کے لگ بھگ ہے۔ شہری آمد و رفت میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ پاکستان میں تقریباً 30 سے 36 ہزار لوگ سالانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں اپنی جان بحق ہوتے ہیں، اپنی جان سے جاتے ہیں۔ تو ڈرائیور لیس کارز میں مسٹیکس کی غلطی جو مسٹیکس ہیں، جو ڈرائیونگ کی جو مسٹیکس ہیں، اس کے چانسز کافی کم ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان، چائنا اور انڈر سی پیک اگر ہم اس پروجیکٹ کو شامل کرتے ہیں اور پاکستان جو ہے چائنا سے اس کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی اور وہ تمام کار مینوفیکچرنگ کمپنی جو ڈرائیور لیس ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہی ہیں، ہم ان کو اگر ہم انوائٹ کرتے ہیں پاکستان میں جو کار مینوفیکچرنگ کمپنی جو ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کے طور پہ کام کریں اور ایسی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر سکے تو پاکستان میں بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔